بلٹن میں خوش آمدید۔ اب آپ کو بتائیں کہ ٹریفک پولیس نے ایک ہفتے میں 20,000 سے زائد چالان کر ڈالے۔ شہریوں پر 2.25 کروڑ سے زائد کے جرمانے بھی عائد کیے ہیں۔ تفصیلات کے لیے معراج اختر کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ قانون توڑا تو چالان بھرو اور جیب ہلکی کرو۔ کراچی ٹریفک پولیس کا بلا امتیاز ایکشن جاری، ایک ہفتے میں 2.25 کروڑ روپے کے جرمانے کر دیے۔ کراچی میں ٹریفک پولیس نے 7 روز کے دوران مجموعی طور پر 20,990 چالان کر ڈالے۔ سب سے زیادہ 4,863 چالان ٹریفک سگنل کی خلاف ورزی پر کیے گئے۔ دوسرے نمبر پر ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر گاڑی چلانے پر 4,309 چالان ہوئے۔ نو پارکنگ پر 3,018 چالان، بغیر نمبر پلیٹ موٹر سائیکل چلانے پر 1,755 اور رنگین شیشوں والی گاڑیوں کے خلاف 1,196 چالان ہوئے۔ ون وے کی خلاف ورزی پر 1,694 اور فینسی نمبر پلیٹ پر 1,593 چالان کیے گئے، جبکہ غفلت و لاپرواہی اور تجاوزات قائم کرنے پر 36 مقدمات بھی درج کرائے گئے۔ ٹریفک پولیس حکام کے مطابق قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ معراج اختر، سٹی 21۔ اور ناظرین، ایکسپورٹ فائنانس اسکیم میں کروڑوں روپے کا فراڈ ہوا ہے۔ پوسٹ کسٹم کلیئرنس آڈٹ نے فضل ربی انٹرپرائزز کے مالی فراڈ کے ایک اہم کیس کا پتہ لگا لیا ہے، جبکہ کراچی میں بوگس پتے پر رجسٹرڈ ہونے کے باوجود فائدہ اٹھایا گیا اور گوادر کے کسٹمز کلیکٹریٹ سے EFS کی اجازت دھوکہ دہی سے حصول کی گئی تھی۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ کمپنی نے 20 کروڑ 80 لاکھ روپے کے غیر قانونی طور پر بیرون ملک منتقل کیے۔ اشرف خان کی رپورٹ دیکھیے۔ ایکسپورٹ فائنانس اسکیم میں کروڑوں روپے کا فراڈ، پوسٹ کسٹم کلیئرنس آڈٹ کی بڑی کارروائی۔ پوسٹ کسٹم کلیئرنس آڈٹ نے فضل ربی انٹرپرائزز کے مالی فراڈ کے ایک اہم کیس کا پتہ لگا لیا۔ پوسٹ کسٹم کلیئرنس آڈٹ ڈپٹی ڈائریکٹر شیراز احمد کی رپورٹ کے مطابق دھوکہ دہی پر مبنی انٹرپرائزز، جو کہ نہ صرف جعلی بلکہ اس کا وجود ہی نہیں، کمپنی نے EFS کے ذریعے قومی خزانے کو کروڑوں روپے کا دھوکہ دیا۔ مسز فضل ربی انٹرپرائزز نے کراچی و ہب میں جو ایڈریس دیے وہاں طویل عرصے سے کام ہی نہیں کیا۔ کمپنی نے کراچی میں بوگس ایڈریس پر رجسٹرڈ ہونے کے باوجود فائدہ اٹھایا اور گوادر کے کسٹم کلیکٹریٹ سے EFS کی اجازت سے دھوکہ دہی سے حاصل کی تھی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ کسٹم کے وی باکس سسٹم سے معلوم ہوتا ہے کہ جعلی صارف نے اجازت کے حصول کے بعد کبھی برآمدات نہیں کی، اور ڈیٹا سے پتہ چلتا ہے کہ 20 کروڑ 80 لاکھ روپے کی درآمدی اشیاء چوری کی گئی تھیں، جس کے نتیجے میں 14 کروڑ روپے ٹیکس ڈیوٹی چوری ہوئی۔ تحقیقات کے مطابق 20 کروڑ 80 لاکھ روپے کی غیر قانونی رقم بیرون ملک منتقل کیے۔ اشرف خان، سٹی 21۔ سول اسپتال کے MS ڈاکٹر خالد بخاری کا احسن اقدام، شعبہ نیورولوجی ICU میں مخیر حضرات کے تعاون سے جدید مشینری نصب کر دی گئی، جس سے مریضوں کو مزید بہتر انداز میں طبی سہولیات فراہم ہو سکیں گی۔ تفصیلات ابراہیم رند کی رپورٹ میں جانیں۔ سول اسپتال میں بہترین طبی سہولیات کی فراہمی، نیورولوجی ICU میں جدید مشینری نصب، 2 جدید وینٹیلیٹرز، 2 مانیٹرز اور 5 بیڈ شامل۔ سول اسپتال کے MS ڈاکٹر خالد بخاری کا کہنا تھا کہ مریضوں کو زیادہ سے زیادہ بہترین سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ رواں سال کے دوران متعدد شعبوں میں ترقیاتی کام کرائے ہیں۔ تو کچھ کام ہو رہا ہے تو آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں، تو لوگ بھی آ کے کہتے ہیں کہ نہیں یار واقعی کچھ نظر آ رہی ہے، کام ہو رہا ہے۔ سامان بھی، اکوپمنٹ بھی جو ہم نے بھی پرچیز کیے، اور بھی انشاءاللہ ہمیں میڈم نے کچھ پرچیز کرنے کے لیے ہمیں کہا گیا ہے، اور نیو لیٹسٹ اکوپمنٹ چیزیں ہم پرچیز کر رہے ہیں۔ شعبہ نیورولوجی وارڈ کی انچارج اور مشینری سامان فراہم کرنے والی خواتین شبینہ اور عارفینہ نے کہا کہ امید ہے اب مریضوں کو بہترین طبی سہولیات میسر ہو سکیں گی، اور یہ وقت کی بھی ضرورت تھی۔ اور میں تو دل سے چاہتی ہوں کہ یہاں بھی ہر انسان کو یہی چیز مہیا ہو، if I'm right in the Urdu. تو یہی میسیج ہے ٹو دا پاکستانی اینڈ خاص طور پہ کراچی کمیونٹی، آپ لوگ آگے بڑھ کے کام کیجئے۔ جی بالکل، میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں، اور واقعی اس سے بہت بہتری آئے گی انشاءاللہ، اور ہم پوری کوشش کریں گے۔ اسپتال انتظامیہ نے بھی شہریوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کا عزم کیا، بتایا کہ نئی مشینری سے مریضوں کی مشکلات میں مزید کمی آئے گی۔ اسپتال انتظامیہ کا کہنا تھا کہ چند برسوں کے دوران مزید بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں تاکہ ملک بھر سے آنے والے مریض پریشان نہ ہوں۔ ابراہیم رند، سٹی 21۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ رواں سال بھی ڈوب کر جاں بحق ہونے کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ کراچی اور ہب میں رواں سال سمندر اور ندی نالوں میں 2024 میں 185 افراد ڈوب کر لقمہ اجل بن گئے۔ نمرہ ریاست کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ بے احتیاطی اور تیراکی کی تربیت نہ ہونا جان لیوا ثابت ہوا۔ رواں سال 185 افراد ڈوبنے کے باعث جان سے گئے۔ ایدی فاؤنڈیشن نے سالانہ اعداد و شمار جاری کر دیے۔ رواں سال جنوری میں 6، فروری میں 9، مارچ میں 21، اپریل میں 19، مئی میں 22 افراد جان سے گئے۔ جون میں 24، جولائی میں بھی 24، اگست میں 17، ستمبر میں 15، اکتوبر میں 13، نومبر میں 8 اور
रवां माह में अब तक 7 अफराद जाँ बहक हुए। फलाही इदारे ईदी के सरबराह फैसल ईदी कहते हैं, गर्मियों में समंदर में डूबने वालों की ज्यादा तादाद की वजह तैरने की तरबियत न होना है। लोगों को स्विमिंग आती नहीं है, नहरों में या तालाबों में जो है वो नहाने के लिए जाते हैं और वो तालाब गहरे भी होते हैं, तो वो फिर गहरे वाले पानी में चले जाते हैं। एक को बचाने के लिए दूसरे को बचाने के लिए तीसरा, इस तरह 4-4, 5-5 लोग एक ही इंसिडेंट में डूब जाते हैं और यहाँ पे स्विमिंग नहीं आती लोगों को, और सबसे बड़ी वजह यही होती है। फैसल ईदी ने हुकूमत को हर जिला में तैराकी के तरबियती मराकज बनाने की तजवीज़ दी। ये बच्चे तफरीह के लिए जाते हैं और बेचारे अपनी जानें गंवा बैठते हैं, छोटी छोटी सी तफरीह के लिए जाते हैं। तो इन सबको तैरने सिखाने के लिए हुकूमत जो है वो अपने जितने भी स्कूल्स हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, इसमें स्विमिंग पूल्स बनाएं और वहाँ पे इंस्ट्रक्टर्स रखें जो कि इनको तैरना सिखाएं और बाकायदा इनके कॉम्पिटिशन्स करवाएं और एक ऐसा माहौल करें कि कराची के मेजॉरिटी बच्चा जो है वो स्विमिंग सीख जाए। इससे हम रोक सकते हैं इसको। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 2 सालों के मुकाबले 2024 में डूबकर जाँ बहक होने वालों की तादाद में कमी हुई है। साल 2022 में 207 और 23 में 191 अफराद डूबकर मौत की नींद सो गए। नम्रा रियासत, सिटी 21। बात करें लोड शेडिंग की तो कराची में लोड शेडिंग से तजारती सरगर्मियां ठप होने लगी। ताजिरों ने लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज की धमकी भी दे दी है। नायब सदर कराची चैम्बर फैसल खलील का कहना है कि ताजिर बिल अदा कर रहे हैं, उसके बावजूद लोड शेडिंग का अजाब मुसल्लत है। काविश मेमन की ये रिपोर्ट। मौसम सर्द होने के बावजूद लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, ताजिरों के सब्र का पैमाना भी लबरेज होने लगा। बिजली बंदिश के खिलाफ एहतजाज का इंदिया दे दिया। सदर कराची मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन मिनहाज गुलफाम बरस पड़े। 14 घंटे तक लोड शेडिंग होने का दावा कर दिया कि इलेक्ट्रिक को एहतजाज की धमकी भी दे डाली। हम लोग इतना परेशान हैं कि मार्केटों में लोड शेडिंग, पूरे कराची में आप देख लें तो 12-12 घंटे की लोड शेडिंग जो है वो की जा रही है और इस पर हम लोग बिल्कुल एहतजाज की तरफ भी जाएंगे, क्योंकि बिजनेस सेक्टर जो हमारा बिजनेस कम्युनिटी है वो टैक्स भी दे, हम लोग हर जगह पर कंट्रीब्यूट भी करें, हम इस मईशत के पहिए को भी चलाएं, मगर हमें रिलीफ कहीं भी नहीं मिल रहा। नायब सदर कराची चैम्बर फैसल खलील ने के इलेक्ट्रिक से गैर एलानिया लोड शेडिंग ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। कहा बिल अदा करते हैं फिर भी कारोबारी औकात कार में सिर्फ 2 से 3 घंटे ही बिजली मिल रही है। यानी कि काम के टाइम पे अक्सर मार्केटें ऐसी हैं जैसे 9 घंटे अगर काम किया है तो उन 9 घंटों में से 6 घंटे बिजली है ही नहीं, और जब उनको कहा गया कि आप अपने बिजली के बिल और सारी चीज़ें दें तो उन सब ने अपने बिजली के बिल भी जमा करवाए जो कि 100% पेड है। ताजिर कहते हैं कि इलेक्ट्रिक का बिजली चोरी को जवाज बनाकर घंटों बिजली बंद रखना नाइंसाफी है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ काविश मेमन, सिटी 21। और शहर कायद में सीवरेज और पानी के संगीन मसाइल हैं। सिटी काउंसिल में जमात इस्लामी के अरकान की वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के हुकाम से बड़ी बैठक हुई। अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट कहते हैं कि पूरे शहर में पीने का पानी नायाब और सीवरेज लाइनें चौक हो चुकी हैं। पूरा कराची माफिया की जद में है। नम्रा रियासत की रिपोर्ट देखिए। जमात इस्लामी शहर के मसाइल हल करने के लिए सरगर्म। एडवोकेट की क़यादत में वफ्द की वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के MD से मुलाकात। सिटी काउंसिल में अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट की क़यादत में वफ्द ने शहर में पानी और सीवरेज के मसाइल से आगाह किया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में सैफुद्दीन एडवोकेट बोले, कराची में पानी की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। हमारी 3 माह से मीटिंग जारी है। कराची सीवरेज में डूबा हुआ है। कराची के शहरी अजियत का शिकार हैं। कराची शहर जिसमें पानी की शदीद तरीन किल्लत है, कराची शहर जो गटर के अंदर सीवरेज के अंदर डूबा हुआ है, लेकिन कराची के शहरी जिस अजियत का शिकार हैं पानी की किल्लत की वजह से, लाइनों की टूट फूट की वजह से, लाइनें चौक होने की वजह से, उसकी वजह से हमारे यूसी चेयरमैन और टाउन चेयरमैन इस बात पर मजबूर हैं कि वो इस सारे के सारे काम करवाएं। सैफुद्दीन एडवोकेट ने शिकवा किया कि एहतजाज के दौरान वाटर टैंकर के वॉल्स खोलने पर MQM के जरिए हमारे खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। शहरियों ने एहतजाजन जब एक जगह पानी के टैंकर का टोकन तौर पर वॉल खोल दिया ताकि एक एहतजाज को रिकॉर्ड करा सकें, पुरअमन एहतजाज को, तो एक FIR वाटर बोर्ड की तरफ से दर्ज कराई गई और मालूम ये हुआ है कि जिन साहब ने वो FIR दर्ज कराई उनका ताल्लुक MQM से है।
जमात इस्लामी ने इस मौका पर पानी की सप्लाई के हवाले से वाटर कॉरपोरेशन हुक्काम को याददाश्त भी जमा करवाई। रहनुमाओं ने मजीद कहा कि जमात इस्लामी हर माफिया के खिलाफ आवाज़ उठाती रहेगी। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ नम्रा रियासत, सिटी 21। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि सिंध की मातहत अदालतों में बड़े पैमाने पर तकर्री और तबादले हुए। तहत जुडिशल मजिस्ट्रेट के सूबे की मुख्तलिफ अदालतों में तकर्रियों में तबादले कर दिए गए। जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्दुल समद का शर्की से कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट जनूबी में तबादला कर दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट जूही अब्दुल सलीम का जूही से कराची जनूबी में तबादला कर दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट अली इमरान शाह का कराची गरबी, जबकि जुडिशल मजिस्ट्रेट फहमीदा साहवाल का कराची शर्की से जनूबी, जुडिशल मजिस्ट्रेट जुहेब हुसैन का कराची गरबी से शर्की में तबादला कर दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट अजहर अली का कराची शर्की से मलीर, बेनज़ीर अशरफ का कराची वस्ती से मलीर, रमशा वहीद का मलीर से कराची वस्ती में तबादला कर दिया गया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलरेज मेमन का कराची वस्ती से मलीर तबादला कर दिया गया। रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट ने तबादलों का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आपको बताएं कि कराची प्रेस क्लब के इंतखाबात के लिए दी डेमोक्रेट्स पैनल का ऐलान कर दिया गया है। सदर के लिए फाजिल जमीली और सेक्रेटरी के लिए सुहेल अफजल खान समेत 12 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए गए। आजिज जमाली की रिपोर्ट देखिए। कराची प्रेस क्लब में जमहूरियत का सफर जारी। सालाना इंतखाबात के सिलसिले में दी डेमोक्रेट्स पैनल का ऐलान कर दिया गया। सदर के लिए फाजिल जमीली और सेक्रेटरी के लिए सुहेल अफजल खान नामजद, अरशद खोकर नायब सदर, इमरान अयूब खजानची, मोहम्मद मनसब ज्वाइंट सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ेंगे। गवर्निंग बॉडी पर हफीज बलोच, हमाद हसन, कफील अहमद, मेमूना सिद्दीकी, मंजूर शेख, मोहम्मद फारूक और काजी यासिर मैदान में उतार दिए गए। तकरीब से खिताब में प्रेस क्लब के सदर सईद सरबाजी और सेक्रेटरी शुएब अहमद ने दी डेमोक्रेट्स की 17 साल खिदमत का जिक्र किया। 2 साल जो हमारी टीम थी, मेरी और शुएब की, हमने जो हमारे बुजुर्गों ने या जो हमारे अकाबरीन ने जो हमें मैंडेट दिया था, हमने हर मुमकिन कोशिश की कि उस तारे जो कराची प्रेस क्लब की जो तकद्दुस और उसकी हुर्मत है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको जो है उस पे काम किया। और ना सिर्फ बल्कि हमारी गवर्निंग बॉडी ने जो 2 साल हमारी कारकर्दगी आपके सामने है। इस मौके पर सदारती उम्मीदवार फाजिल जमीली ने तरक्की के सफर को जारी रखने का ऐलान किया। यहाँ आपने सुना जब पैनल का ऐलान हो रहा था, तो ये हम इस इत्तेहाद के 17वें साल में जा रहे हैं। तो पिछले 17 साल से एक तरह से यही हमारा जो इत्तेहाद है वो जीतता आया है और एक तसलसल है। तो ये तसलसल हमेशा बरकरार रहता है। हमारी जो आउट गोइंग गवर्निंग बॉडी है उसने खासे काम किए, प्लाटों के हवाले से हो या कराची प्रेस क्लब के अंदर जितने भी मंसूबे हैं उन पे काम किया। तकरीब के दौरान दी डेमोक्रेट्स के हामी एक दूसरे को मुबारकबाद देते रहे और कतार में खड़े होकर अल्फाज को जोड़कर दी डेमोक्रेट्स बनाया। दूसरी जानिब कराची प्रेस क्लब की इलेक्शन कमेटी ने कई उम्मीदवारों की दस्तबरदारी के बाद हतमी फहरिस्त अवेजा कर दी। कराची प्रेस क्लब के इंतखाबात 28 दिसंबर को होंगे। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ आजिज जमाली, C21। आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी समेत दीगर अदालतों में केसेस की समाअत और फैसलों के मुतालिक देखते हैं ये रिपोर्ट। रेड जोन में वाक़ सिटी कोर्ट में पुलिस सिक्योरिटी नाकाम। हसास मकाम होने के बावजूद मुल्जिमान के भागने का सिलसिला ना थम सका। जालसाजी का मुल्जिम भी पुलिस को चकमा देकर कमरा अदालत से फरार हो गया। एमडीकेट के दोबारा इनेकाद का मामला। उम्मीदवारों ने सवालनामा जारी करने के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया। अगवा बराए तावान केस। ATC ने 9 CTD पुलिस एहलकारों की अबूरी जमानत मुस्तरद कर दी। अदालती फैसला सुनते ही कोर्ट पुलिस ने मुल्जिमान को अहाता अदालत से गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे में मुलव्विस साबिक SHO शुएब कुरैशी जेल में है। पीगा ऑर्डिनेंस केस। शर्की की अदालत ने साबिक रुकन कौमी असम्बली आलमगीर खान की जमानत मंजूर कर ली। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने PS 94 पर मुत्तहदा पाकिस्तान के कामयाब उम्मीदवार नजम मिर्जा के खिलाफ दायर इलेक्शन पटिशन मुस्तरद कर दी। KMC के रिटायर्ड मुलाजमीन की वाजिबात की अदम अदायगी केस। सिंध हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड तलब कर लिया। जामिया कराची के तालिब इल्म की बाजियाबी का केस। SHO अजीज भट्टी की अदम पेशी पर अदालत का इजहार बरहमी। अदालत ने आइंदा समाअत पर SHO थाना अजीज भट्टी को हर सूरत में पेश होने का हुक्म दे दिया। शाह लतीफ टाउन में कब्रिस्तान की जमीन पर इंक्रोचमेंट केस। सिंध हाई कोर्ट ने केस की समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी। पसंद की शादी की ख्वाहिश पर लड़की का
सर मुड़ने का केस। अदालत ने 20,000 रुपये फी कस मचलके के इवज 5 मुलजिमान को जमानत मिल गई। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि खवातीन के समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिंध पंजाब हुकूमतें एक पेज पर आ गई हैं। दोनों सूबों का मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। जबकि समाजी तहफ़्फ़ुज़ के इदारों ने हिकमत अमली तैयार कर ली। तफसीलात आजिज़ जमाली की रिपोर्ट में देखिए। खवातीन के समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिंध पंजाब हुकूमतों की मुश्तरका कोशिशें। तेज़ाब गर्दी की शिकार खवातीन के लिए पंजाब में मुफ्त इलाज की सहूलत मुतारिफ करा दी गई। सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी पंजाब की चेयरपर्सन जहान आरा वट्टू की समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मुआवन खुसूसी सरफराज राजड़ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली के सिंध में सेहत के शोबे में बेहतर काम हो रहा है, लेकिन चारों सूबों में सोशल प्रोटेक्शन फोरम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनिशिएटिव लिया है कि हम बैनुल सूबाई सोशल प्रोटेक्शन की फोरम बनाएं, जिस पर तमाम जो सूबे हैं वो मिल बैठें। सिंध की हुकूमत को, पंजाब की हुकूमत को, केपी की हुकूमत को, हमारे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को और बलूचिस्तान के, कि हम अपने गरीब लोगों को किस तरह समाजी तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं। सरफराज राजड़ ने बताया कि जहां आरा की वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से भी मुलाकात हुई है। हम मुश्तरका तौर पर समाजी तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में काम करेंगे। जहां आरा वट्टू साहबा यहाँ सिंध तशरीफ़ लाई हैं, उनकी सिंध के वज़ीर आला जनाब मुराद अली शाह साहब से मुलाकात हुई है। तो हमारा सोशल प्रोटेक्शन जो हमारे डिपार्टमेंट हैं सिंध और पंजाब के, वो उन लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं कि उनके समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जाएं। सिंध में महकमा सोशल प्रोटेक्शन की जानिब से दूध पिलाने वाली माओं को 15,000 रुपये बैंक के जरिए फराहम किए जा रहे हैं और इस मंसूबे को 22 अजला तक बढ़ाया जा रहा है। आजिज़ जमाली, कराची। KMC के अस्पतालों को सूबाई हुकूमत के मातहत चलाने का इंदिया। वज़ीर सेहत अज़रा पेचोहो कहती हैं, मेयर कराची से बात की है, स्पेंसर आई अस्पताल को KMC और महकमा सेहत के ताउन से फाल किया जाएगा। मीर केरियो रिपोर्ट करेंगे। वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा फजल पेचोहो की साल के इख्तिताम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। सालाना कारकर्दगी पर गुफ्तगू। मजीद मंसूबे भी जल्द मुकम्मल करने का इंदिया दिया। वज़ीर सेहत ने नए साल में मजीद भर्तियों की खुशखबरी दी और कहा कि बल्दिया टाउन में अमराज कल्ब का बड़ा अस्पताल बना रहे हैं, जिसके लिए जमीन बल्दियात से लेकर SICVD को दी है। मजीद कहा कि मेयर कराची से बात की कि स्पेंसर आई अस्पताल को KMC और महकमा सेहत के ताउन से फाल करें। KMC के तहत गजदराबाद और सोबराज अस्पताल को महकमा सेहत के ताउन से बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। डाउ ओझा को कैंसर के यूनिट चलाने के लिए ग्रांट देते हैं। स्पेंसर आई हॉस्पिटल आपको पता है कि बड़ी से बड़ी अस्पताल थी, हमारी आई हॉस्पिटल थी, जो अभी बिल्कुल फ़ाल नहीं है और वहाँ काम नहीं हो रहा। हम चाह रहे हैं कि हम एक पार्टनरशिप के तहत, MOU के तहत इस अस्पताल को हेल्थ डिपार्टमेंट की और KMC जॉइंट वेंचर करे, एक साथ चलाए। सोबराज हॉस्पिटल है, इन तीनों को हम चाह रहे हैं कि ये भी हम चला सकें। डाउ ओझा में भी बहुत सारे कैंसर की फैसिलिटीज़ भी इस्टेब्लिश हो चुकी है। वजीर सेहत का कहना था कि ग़िज़ाइयत की कमी वाले बच्चों में डायरिया के सबब औरल वैक्सीन मौसर असर नहीं रखती, इसलिए पोलियो की इंजेक्टेबल वैक्सीन दी जाएगी। जो भी 5 साल तक की उम्र के बच्चे हैं उनको रूटीन इम्यूनाइजेशन लग जाए, जिसमें ना सिर्फ पोलियो के कतरे होते हैं लेकिन इंजेक्टेबल पोलियो भी होती है, ताकि इससे हमारा कुछ फ़र्क पड़ जाए इम्यूनिटी में, जो कुव्वत मदाफ़ियत है उसमें बेहतरी आ जाए। अज़रा पेचोहो ने मजीद कहा कि जिना अस्पताल में गायनी वार्ड में हमने 10 यूनिट के लिए जनरल ICU बनाया है, अब सखर में शुरू किया है, जबकि जामशोरों में शुरू करेंगे, इसलिए आइंदा साल अफरादी कुव्वत भर्ती की जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ मीर केरियो, सिटी 21।